Welcome back. Today we move ahead with our third chapter of English that we were doing in the previous lecture, and that is related to the little girl, written by Catherine. And this part, fourth part, as you can see over here, we had already done. And we were even talking about this cushion over here, right? You can see it now very clearly. And this was what was suggested by the grandmother to the little child, that you can make it for your father's birthday, which is in the next week. So now ahead, here you can see how the father, like Sunday, he is relaxing over here with that handkerchief on his face, mother reading the newspaper or a book, and poor child, she comes from here, from upstairs, but then she stops somewhere over here because each are in their own world. That is what she feels, and she is afraid to go near to her father. So she is staring from here. And laboriously means with lots of effort, with a double cotton, the little girl stitched three sides. Means she took that cotton, that silky yellow colored cloth, she stitched the three side of that rectangular cloth. It took a lot of time and hard work for that small little girl. But now that one side was to be filled up, that is, for example, this is the paper over here, but imagine it's a cloth which she was supposed to make a pillow. Now, three-sided, she had already stitched. One side of this one side was open. Now what she had to do was open up and fill in something so that it could become a pillow over here for the father to, that is the pin cushion. But now what to fill it with? That was a big question for the child. The grandmother was out in the garden and she wandered, means the girl moved, in her mother's bedroom to look for some scrap, मतलब कुछ कचरा जो वो उस पिलो के अंदर भर सके. On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper. अब मम्मी के बेडरूम में उसने देखा कि स्टडी टेबल पे बहुत सारे पेपर्स, अच्छे खासे पेपर्स पड़े थे. She collected them, that is, she gathered them. She tore them into many pieces, stuffed her, means she tried to put it in that one side open that cushion, stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब fourth side भी stitch up कर ली उसने. It means that pillow was now ready. Cushion was ready indeed. That night there was hue and cry, lots of anger, protest, quarreling, shouting. My God! अगर पापा के ऑफिस के बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स तुम फाड़ दो, इमेजिन रात को जब पापा घर पे आते हैं तो सीन क्या होगा. इमेजिन तो कर लो, यू विल एंजॉय, राइट. तो हुआ ये कि रात को आते ही घर में chaos, shouting, anger. Father's big speech. Father was going to give speech. For the port authority had been lost. अब वो जो पेपर्स लड़के ने यूज किए थे वो क्या था? That was the speech that was made ready by the father, and it was to be given, the speech was to be given by the father on a special occasion. अब वो उसे नहीं मिल रहे थे पेपर्स पापा को. रूम्स वर सर्च, हर एक रूम में देखा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों को बुला के पूछा गया कि भाई आपने अगर देखा हो तो बता दो. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. अब मम्मी को थोड़ा बहुत डाउट गया. वो आ गई केजिया के रूम में. केजिया, उसने पूछा, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अ रूम. उसने कहा क्या तुमने देखे थे पेपर्स कोई हमारे रूम में टेबल पे पड़े हुए? और लड़की बेचारी भोली भाली क्या कहा उसने? ओह यस, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. मुझे एक सरप्राइज देनी है, तो उस सरप्राइज के लिए मैंने उन कागजों को फाड़ दिया. What? Screamed the mother. Come straight down to the dining room this instant. मतलब चुप होके सीधे नीचे आ जाओ.
और इसी वक्त आ जाओ नीचे। इसी वक्त मतलब दिस इंस्टेंट। अब सोचो क्या होगा, कभी तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा, राइट? गलती करने पे मस्त थप्पड़। तो यहाँ पे भी शायद वो ही है अंजाम। देखते हैं आगे। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, खींच के मम्मी ले गई नीचे की ओर। वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चलना। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक मतलब हाथ पीछे की ओर और आगे पीछे चलना रूम में, टेंशन में। ही वॉज वरीड, ही वॉज एंग्री ऑल्सो। वेल, ही सेड शार्पली, शार्पली मतलब गुस्से में। बताओ क्या हुआ? मदर सेड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अब मम्मी ने तो सब एक्सप्लेन कर दिया कि लड़की ने फाड़ दिया ये सब। तो पापा लड़की को स्टेयर करने लगे। डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड। मदर, गो अप टू हर रूम, फेच डाउन दैट डैम थिंग। और सारी चीजें नीचे लाओ उसके रूम से। सी दैट द चाइल्ड इज ऑल्सो पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और लड़की को डाल दो बेड में, सुला दो उसे अभी के अभी। Father got very angry. Child was, as such, she was always afraid of the father. अब तो और डर में रहने लगी। Trying too much to explain. अब लड़की कोशिश कर रही थी कि कुछ समझाए, लेकिन समझा नहीं पाई। She lay in the shadowed room, that is dark room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो देख रही थी कि शाम की हल्की सी लाइट विंडो में से उसके रूम में आ रही थी, लेकिन ये पूरा माहौल दुखी बन गया था उसके लिए। शी वॉज वेरी सैड। देन फादर केम इन द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। अब तुमने जो किया उसके लिए तो मार पड़नी ही चाहिए। दैट्स योर पनिशमेंट। और अब तुम समझ जाओगी कि अब के बाद कभी बिना पूछे किसी को कुछ नहीं काम करने हैं। नो नो नो, शी शाउटेड, शी स्क्रीम, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। बेचारी छिप गई थी अपने जैसे पिलो के पीछे या ब्लैंकेट के पीछे। पापा नो। एंड ही पुल्ड देम असाइड। पापा ने खींच लिया ब्लैंकेट। सिट अप, ही ऑर्डर, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। ऐसे कर लो हाथ, सो दैट रूलर पड़े उस पर। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो आज एक बार अगर हाथों पे मार खाओगी तो दूसरी बार पता चलेगा कि बिना पूछे जो चीज़ अपनी नहीं है उसे हम टच नहीं करेंगे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करके बेबी ने बता ही दिया, पापा इट वॉज फॉर योर बर्थडे। Down came the ruler on her little pink palms. मतलब बेचारी के छोटे छोटे पाम पे धनाधन रूलर आने लगी। हाय बेचारी लड़की, राइट? Hours later, फिर बहुत टाइम के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl. अब बेचारी दादी माँ आई थोड़े टाइम के बाद और उसे ऐसे ब्लैंकेट से ढक दिया या शॉल में रख दिया। And rocked her in a rocking chair. अब suppose I am sitting on a rocking chair at present, तो कैसे होगा? यूं होगा, right? तो दादी माँ बैठ गई, साथ में बेबी को हाथ में ले लिया, and she was rocking. And it so happened that the child clung to her soft body. और दादी माँ को ऐसे गले से लिपट के वो सो गई। बट फिर भी वो रो तो रही थी। What did God make fathers for? हे भगवान, भगवान ने पापा को क्यों बनाया? ये बेचारी को आज तक पता नहीं चला, क्योंकि दिमाग में क्या था? पापा कैसे होते हैं? गुस्से वाले, मारने वाले। इट वॉज फियरफुल। बहुत डर लगता था उसे। Here's a clean hanky. हैंकी मतलब रुमाल, हैंकरचीफ। डार्लिंग, ब्लो योर नोज मतलब नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट मतलब माई बेबी, माई डियर, गो टू स्लीप, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही तुम भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन योर फादर
बट ही वॉज वेरी एंग्री येस्टरडे, दैट इज कल रात को पापा बहुत गुस्से में थे, उनको नहीं सुनना था तुम्हारी बात या मेरी बात, सो यू गो टू स्लीप. बट द चाइल्ड डिडंट फॉरगेट. आई टू बिलीव कि बड़े तो भूलते ही नहीं हैं. अगर किसी ने उनको मारा, इंसल्ट किया, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, दे विल नेवर फॉरगेट. बट छोटे बच्चों का दिमाग और ज़्यादा तेज़, वो लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं ये चीज़. हम तो फिर भी मे बी कभी समझ के शायद लेट गो कर ले, बट चिल्ड्रन, इट हैज़ अ डीप इम्प्रेशन ओवर योर. इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को प्यार से हम बड़ा करते हैं. माई बेबी, माई डियर. हाँ, थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, बट मारना नहीं. और प्यार से जहाँ तक हम हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को प्यार से हम हैंडल करें, अच्छी सीख दें. अदरवाइज दैट वन स्लैप in the tender age, in the small age, young days, children never forget. Right? Many things are still there in the back of my mind, of my childhood, which I have never forgotten. And it comes to my mind many a times. Yes, I try to forget, but it's okay. Many a times my children knows over here in the class, in tuition, that I share with them many of those my experiences. So that will share it once again in tuition class. Till then, over here, the child didn't forget. Next time she saw him, she quickly put both the hands. This? No, she did it this. जैसे ही दूसरे दिन उसने पापा को देखा तो हाथ पीछे छुपा दिए. And a red color flew onto her cheeks. गाल डर के मारे लाल हो गए. बहुत डरी हुई थी लड़की. अब मैकडॉनल्ड्स बेबी, मुंह में पानी तो आना ही है, जिनको आदतें पड़ गई है इन चीज़ों की, लाइक भेल, पानी पूरी, वड़ा पाव, दाबेली. वैसे ये भी दाबेली का एक फॉर्म ही है, या वड़ा पाव का एक मस्त वर्जन है. अच्छे कपड़े पहना दिए हैं, दैट इज मैकडॉनल्ड. वो तो तुम्हें पता है. बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड, दैट चेन जहाँ खाना खाने जाते हैं बच्चे या बड़े. मैकडॉनल्ड हियर इज अ फैमिली. अब मैकडॉनल्ड जो नाम है, जहाँ पे पिज्ज़ा, पिज्ज़ा, बट आई थिंक सो बर्गर एंड दोज शेक्स एंड ऑल, आइसक्रीम दैट वी यूज्ड टू गो एंड हैव इट, वो भी कहीं पे एक सरनेम है. उस नाम पे से ये नाम बना पूरे स्टोर चेन का, मैकडॉनल्ड. तो यहाँ पे इस लड़की के नेबरहुड में कौन था? मैकडॉनल्ड फैमिली. दे हैड 5 चिल्ड्रन. माय गॉड, मस्ट टाइम पास. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस. फेंस मतलब जैसे दो घर के बीच में एक जो यू कैन कॉल वुडन फेंस या तार लगा देते हैं. तो लड़की उसके बीच में से देख रही थी कि भाई क्या है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं ये लोग. एंड शी सॉ दैट दिस फैमिली वाज प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. सो योर आई स्टॉप फॉर फ्यू सेकेंड एंड यू कैन सी ओवर योर. आई एम गोइंग टू शो योर वीडियो ओवर योर. तो ये टैग है क्या गेम? बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता. But I know you are going to enjoy this game, this video of 2 minutes. So here follows the video. Let's start.
Now you understand what's this tag game? I can understand it was a very short video for you to enjoy, but और आगे वीडियोस फॉलो होंगे दूसरे चैप्टर्स में एंड एक दिन कहीं पे मस्त एकदम शॉर्ट मूवी भी दिखा दूंगी फॉर योर फ्रेशनेस, राइट? नॉट अ लॉन्ग मूवी बट हम देखेंगे एक शॉर्ट चार्ली चैपलिन नाइस इंटरेस्टिंग मूवी और related to your studies also many such short videos will be showing you. So at present I think so you understood the meaning of this tag game, right? Now father was playing with the baby Mao on his shoulders. अब पापा ने माओ को यहाँ पे बिठा दिया. Two little girls hanging to his coat pockets. अब दो लड़कियाँ यहाँ पे हैंग हुई थी. Ran round and round the flower beds that is in the garden, shaking with laughter. बच्चे हंस रहे थे. Once she saw the boys turn the hose on him. Hose you can say वो पानी का लंबा सा पाइप जो हम गार्डन में डालते हैं, like nurturing the plants with water. तो लड़कों ने ये पानी का पाइप छोड़ दिया पापा पे and he tried to catch the boys laughing all the time. अब ऐसे भी पापा होते हैं? ये बेचारी लड़की कंफ्यूज. उसने तो पापा को क्या देखा था कैसे? पापा मीन्स गुस्से वाले, पापा मतलब मारने वाले, बट ये पापा तो कुछ बहुत ही अलग थे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स. तो उसने सोचा चलो भी अलग अलग टाइप्स के पापा होते होंगे. सडनली वन डे मदर वॉज इल. अब मम्मी उसकी एक दिन बीमार हो गई. शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. माई गॉड, टुडे शी वॉज वेरी अफ्रेड. अब मैं और पापा अकेले, आज तो पता नहीं क्या होगा मेरा. सो शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. चलो एलिस कुक भी थी थोड़े टाइम के लिए. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन के लिए अच्छा था, अब रात पता नहीं. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन एलिस जब रात को उसको सुला रही थी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड. वो डर गई एकदम लड़की. माई गॉड, अब रात को पापा आएंगे. Here you can see just this pic over here, like how the father is playing with this Mao on the shoulder, two girls hanging around, two boys over here, and the girl that is Kezia seeing through the fence. Now what will I do if I have a nightmare? अब वो पूछ रही है एलिस को कि अगर मुझे रात को डरावना सपना आया तो मैं क्या करूं? I often have these nightmares and then Granny takes me into her bed. जब मैं डर जाती हूँ रात को ऐसे सपनों से तो दादी मुझे अपने बेड में ले लेती है. मैं रात को अकेले नहीं सो पाऊंगी. It all gets whispery. Whispery मतलब डरावना. You just go to sleep dear, said the cook, pulling off her socks. अब उसके सॉक्स निकाल दिया और कहा तुम सो जाओ. Don't you scream and wake your poor pa. और तुम्हारे पापा बहुत थके हुए हैं आज, तो चिल्ला के उनको जगाना मत. But the same old nightmare came. अब एलिस तो चली गई, लड़की अकेली अपने रूम में बेड में. वही सपना वापस डरावना. तो सपने में कौन आया? बचाओ मतलब अ पर्सन हुज ट्रेड, मतलब जिसका काम क्या है, मीट को कट करके सेल करना अपनी शॉप में. तो द बचक विथ अ नाइफ एंड अ रोप was coming nearer and nearer and nearer, smiling that dreadful smile. और स्माइल कैसी थी उस बच्चे की? डरावनी, dreadful. While she could not move, could only stand still, crying out. अब वो डर गई. ये सब नींद में हो रहा है तो डर गई एकदम, चिल्लाने लगी, grandma, grandma. She woke shivering to see father beside her bed. अब जब एकदम से आंखें खुली तो क्या देखा? माय गॉड, पापा विद अ कैंडल इन हिज हैंड. मतलब कैंडल तो पता ही होगा. व्हाट्स द मैटर, ही सेड कि भाई बच्ची क्या हुआ? ओह अ बच्चो, अ नाइफ, आई वांट ग्रैंडमा. अब पापा ने कैंडल ब्लो आउट कर दिया. ही बेंड डाउन, नीचे झुके, कॉट अप द चाइल्ड इन द आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज. अब पूरे पैसेज में ले गए टू द बिग बेडरूम जहाँ पे वो खुद सोते थे. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड.
हाफ स्मोक सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प. अब लड़की ने क्या देखा कि पापा के बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, एक हाफ स्मोक सिगार पड़ी हुई थी नियर द रीडिंग लैम्प. अब पापा ने पेपर हटा दिया, सिगार को फायर प्लेस में डाल दिया, फिर केयरफुली उस बच्ची को उठाया ऐसे और उसको अपने बेड पे बाजू में लिटा दिया. अब लड़की अभी भी आधी जागी हुई, आधी नींद में, हाफ asleep still with the बच्चा स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम. अभी भी आधी जगी हुई क्यों थी? आंखों में अभी भी वो डर था बच्चर का. स्नगल एंड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. और डर के मारे वो कहाँ चली गई? पापा के एकदम नजदीक चली गई. स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म. और पापा के स्नगल मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में चली गई. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और पापा के शर्ट को टाइटली पकड़ लिया. देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल. अब अंधेरा का डर नहीं था. पापा में आज उसने एक प्रोटेक्टिव पापा देखे, शायद एक लविंग पापा देखे, और वो सो गई. रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म. और पापा ने कहा कि तुम्हारे पैर मेरे पैर के ऊपर ऐसे रब कर लो ताकि थोड़ी वार्मनेस लगे, अच्छी फीलिंग आए. एंड टायर्ड आउट. पापा भी थके हुए थे पूरे दिन के, तो वो सो गई बच्ची को लेके. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. लड़की को बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही थी. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. बोलते ओ, अब तक मैं पापा को कैसा मानती थी? ह्यूज, लंबे चौड़े, डरावने. अब लगा नहीं, पापा प्यारे हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. और मेरे लिए तो पापा भी है ध्यान रखने के लिए. पापा का ध्यान रखने वाला तो कोई है ही नहीं. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. अब जब वो ग्रैंड मदर को ऐसे लेके सो जाती तो ग्रैंड मदर सॉफ्ट सॉफ्ट थी, लेकिन ये पापा सॉफ्ट नहीं थे ग्रैंड माँ जैसे. बट इट्स ओके. But it was a nice feeling of hardness. And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. उसने कहा मेरे पापा इतना काम करते हैं पूरे दिन कि शायद वो मैकडोनल्ड बाजू वाले पापा की तरह मेरे साथ नहीं खेल सकते. तो इट्स ओके. एंड आफ्टर ऑल शी हैड टोर्न अप ऑल दैट ब्यूटिफुल राइटिंग. और फिर भूल मेरी भी तो थी. अच्छी खासी स्पीच पापा की मैंने फाड़ दी. शी स्टर्ड सडनली एंड साइड. स्टर्ड मतलब एकदम से वो हिली. व्हाट्स द मैटर? पापा ने पूछा क्या हुआ? और कोई सपना देखा? अनदर ड्रीम? ओह, माई हेड इज ऑन योर हार्ट. बच्ची ने कहा कि मेरा हेड आपके हार्ट की तरफ है. आई कैन हियर इट गोइंग. मुझे आपके हार्ट की धक धक सुनाई दे रही है. You have got such a big heart, dear father, कि आप बहुत अच्छे हो पापा. So, understood? That strict father, tough father के दिल में क्या है? बहुत सारा प्यार अपने बच्चों के लिए. So, don't ever think that your parents don't love you. And your strict teacher also never think that she doesn't or he doesn't love you. They too love you. Because they love you, they shout at you. They want you to be the best. Got it? So go through this, and I'm putting in an effort, not an effort, but I'll try my level best to provide you some interesting videos in the coming days so that we both enjoy a lot our studies along with some short movies, right? 10-20 minutes related to your study, related to some humor in your life in this lockdown period. I think so now you are fed up of playing also. क्योंकि वो खेलना है घर के अंदर, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा. So it's okay, but we will try you and me यहाँ पे enjoy करें. Because when I'm teaching, I always feel that मेरे सामने मेरे सारे बच्चे बैठे हैं, तुम मुझे देख सकते हो. But yes, I imagine कि तुम हो वहाँ पे, और फिर उसी तरह से I start enjoying my lectures over here. So, more days ahead to enjoy with you. Goodbye.
and have a good day with your dear, loving parents and grandparents. Thank you so much.